गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11-1 यानी कि हमारा चैप्टर है 11 चैप्टर नंबर 10। ठीक। और इसमें हम बात करेंगे वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर का क्या क्या है रोल। ओके, चलो। और ये इंपॉर्टेंट है और छोटा चैप्टर है, कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। चलो भैया शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत। ओके, you have already learned that the air contains water vapor। आपको पता है हवा में होता है water vapor, so it varies from 0 to 4% by volume of the atmosphere and plays an important role in the weather phenomena। water is present in the atmosphere in three forms only, gas में है, liquid में है और solid stage में। ठीक। the moisture in the atmosphere is derived from water bodies। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो वाटर बॉडी से आया हुआ है थ्रू evaporation and from plants through transpiration, and thus there is a continuous exchange of water between the atmosphere, the oceans and the continents through the process of evaporation, transpiration, condensation and precipitation। ये एक साइकिल है, चलता है, चलता था, चलता रहेगा। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता या फिर नमी। And it is expressed quantitatively in different ways। The actual amount of the water vapor present in the atmosphere is known as the absolute humidity। And what is this? So it is the weight of water vapor per unit volume of air and is expressed in terms of grams per cubic meter। ये क्या है? Water vapor per unit volume of air। So the ability of the air to hold water vapor depend करता है entirely on its temperature पे। The ability of, अगर देखो वाटर वेपर कोई भी मतलब एयर है, वाटर वेपर कितना डिपेंड करेगी, मतलब होल्ड कर पाएगी। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, बेसिक सी बात है। सो द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी differs from place to place on the surface of the earth, and the percentage of the moisture present in the atmosphere as compared to its full capacity at a given temperature is known as the relative humidity। And with the change of air temperature, the capacity to retain moisture increases or decreases, and the relative humidity is also affected। It is greater over the oceans में ज़्यादा है humidity and least over the continents। The air containing moisture to its full capacity at a given temperature is said to be a saturated। अगर उसने अपनी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब केमिस्ट्री पढ़ाई है। सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त है, कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं है, फुल है इसका पेट। और इट मीन्स दैट द एयर एट द गिवन टेम्परेचर इज इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग एनी एडिशनल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एट दैट स्टेज। मतलब कि जब वो सैचुरेटेड है तो कुछ और होल्ड नहीं कर पाएगी। एंड द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर इज नोन एज ड्यू पॉइंट। अब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि वो सैचुरेटेड से भी ड्यू मतलब कि ओस बन के निकलने लगेगी। चलो, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की बात करते हैं। इवेपोरेशन को बोलेंगे शायद बाष्पन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कंडेंसेशन बोलेंगे हिंदी में संघनन। So the amount of water vapor in the atmosphere is added or withdrawn due to evaporation and condensation respectively। So evaporation is a process by which water is transformed from liquid से gas state में। ठीक। Heat is the main cause for evaporation। The temperature at which the water starts evaporating is referred to as the latent heat of vaporization। ये मैं आपको केमिस्ट्री में सब पढ़ा चुका हूँ। Increase in temperature increase water absorption and retention capacity of the given parcel of the air। And similarly if the moisture content is low, अगर moisture का content बहुत कम है, so air has a potentiality of absorbing and retaining moisture। Movement of air replaces the saturated layer with unsaturated layer। तो इसका मतलब क्या हुआ? The greater the movement of air, the greater is the evaporation होगा उसका। The transformation of water vapor into water is called condensation। ठीक। तो कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट। जब हीट का लॉस होगा तो कंडेंसेशन होगा। एंड व्हेन मॉइस्ट एयर इज कूल्ड इट मे रीच अ लेवल व्हेन इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर ceases। ठीक। देन द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड फॉर्म, एंड इफ इट डायरेक्टली कंडेंसेस इनटू सॉलिड फॉर्म इट इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन हिंदी में। आपको पता है कोई भी लिक्विड गैस में बनकर सीधे सॉलिड बन जाए उसको बोलते हैं
क्या बोलता हूँ, कोई भी सॉलिड लिक्विड ना बन के सीधे क्या बन जाए, गैस बन जाए, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन. So in free air, condensation results from cooling around very small particles termed as hygroscopic condensation nuclei. Particles of dust, smoke, and salt from the ocean are particularly good nuclei because they absorb water. ठीक. Condensation also takes place when the moist air comes in contact with some colder object, and it may also take place when the temperature is close to the dew point. Condensation therefore depend upon the amount of cooling and the relative humidity of the air. Condensation is influenced by the volume of air कितना है, temperature उसका pressure क्या है, and humidity कितनी है. Condensation takes place कहाँ कहाँ पे, when the temperature of the air is reduced to dew point with its volume remaining constant. अगर उसका volume constant रहेगा और dew point से नीचे उसका temperature हो जाए. दूसरा, when both the volume and the temperature are reduced. अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस हो जाए. और क्या हो सकता है, व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन. ठीक. हालांकि द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द कंडेंसेशन इज द डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर. अगर एयर का टेम्परेचर गिर गया तो कंडेंसेट हो जाएगी. आपको पता है ना, पहाड़ों से जब हवा टकरा के ऊपर उठती है, अब आपको पता है हाइट जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है ना, तो जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेट हो जाएगा और पानी बरस जाएगा. ये कॉन्सेप्ट मेरे को आज तक पता नहीं था, सच बता, मैं सच में ये नहीं जानता था कि जो कंडेंसेशन होता है तो क्या होता है. ऊपर जाने पे टेम्परेचर तो कम होता है, लेकिन कैसे होता है तो मेरे को आज रियलाइज हुआ. ठीक. खैर, आफ्टर कंडेंसेशन द वाटर वेपर और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर. कंडेंसेशन के बाद जो वाटर वेपर है या फिर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. क्या, या तो ड्यू बनेगा या फिर कोहरा बनेगा या फॉग बनेगा फिर क्लाउड बनेगा. एंड फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड लोकेशन. कंडेंसेशन टेक प्लेस when the dew point is lower than the freezing point. से अगर कम है थोड़ा सा तो बन जाएगा dew, as well as higher than the freezing point. dew क्या होती है, so when the moisture is deposited, the moisture deposit होता है in the form of water droplets on cooler surface of solid. आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स पे क्या होती हैं, ये छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं बाहर, बूंदें वो क्या होती हैं, ड्यू होता है. द न्यूक्लिया इन द एयर अबव द सरफेस, सो सच एज स्टोन्स, ग्रास ब्लेड्स एंड प्लांट लीव्स. अब पेड़ की पत्ती से भी निकलता है ना, वो ओस होती है, इट इज नोन एज ड्यू. द आइडियल कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन. और पहले बात तो उसके लिए चाहिए हमें क्लियर स्काई, एकदम शांत हवा, क्योंकि हवा चलेगी तो मॉइस्चर उड़ा ले जाएगी. और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तभी तो होगा ना ड्यू पॉइंट उठेगा. एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, लंबी और ठंडी रातें चाहिए. क्यों, उसी से तो फॉर्मेशन होगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू. एंड इट इज नेसेसरी दैट द ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि अगर उससे नीचे हो गया फ्रीजिंग पॉइंट से तो वो फ्रीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, स्नो बन जाएगा. फ्रॉस्ट, दिस इज अनदर थिंग. तो फ्रॉस्ट फॉर्म्स एंड ऑन कोल्ड सरफेस पे होता है, ठंडी जगह पे. व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री से नीचे जब कंडेंसेशन होता है, तो द ड्यू पॉइंट, अब देखो ड्यू पॉइंट इज एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. ड्यू पॉइंट क्या है, या तो 0 डिग्री पे या फिर माइनस में है. द एक्सचर जो एक्सेस मॉइस्चर होगा इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह. क्यों, क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा ड्यू पॉइंट है उससे नीचे जा रहे हैं. तो फ्रॉस्ट के लिए आइडियल कंडीशन क्या है, white frost are the same as those for the formation of the dew, except that the air temperature must be at or below the freezing point. बस बाकी सारी कंडीशन वही है कि कोल्ड सॉरी क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड लॉन्ग नाइट्स वगैरह वगैरह. बस एक चीज है कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमारा ड्यू पॉइंट है वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए. फॉग एंड मिस्ट की बात करते हैं. So when the temperature of an air mass containing a large quantity of water vapor अचानक से नीचे गिरती है, so condensation take place within itself on fine dust particles. जो आपका हवा में धूल के कण हैं उन पे गिरती है. So the fog is a cloud with its base at a very near to the ground. Ground के पास आते ही ये उसमें मिक्स हो जाते हैं, ठीक है. And because of the fog and mist, the visibility becomes poor, से जीरो हो जाती है. In urban and industrial का center smoke
provides plenty of nuclei which help the formation of fog and mist. And such a condition when fog is mixed with smoke, जब fog smoke के साथ mix हो जाता है, is described as smoke. And the only difference between the mist and fog is that mist contains करता है more moisture than the fog. Fog में moisture कम होता है, क्यों? क्योंकि fog में होता है आपका dust particles. So in mist, each nuclei contains a thicker layer of moisture, and mist are frequent over mountains as the rising warm air up to the slopes meets a cold surface. Fogs सूखे होते हैं then mist and they are prevalent where जहाँ पर warm currents of air come in contact with the cold currents. Fogs are mini clouds, ध्यान रखना, in which condensation take place around nuclei provided by the dust, smoke and the salt particles. Okay, next हमारा clouds, important thing. Cloud क्या है? Cloud is a mass of minute water droplets or tiny crystals of ice formed by the condensation of the water vapor in free air at considerable elevation. So as the clouds are formed at some height over the surface of the earth, so they take various shapes according to their height, expense, density and transparency या फिर opaqueness यानी कि दिखाई देने वाले आइटम. Clouds are grouped under four: cirrus, cumulus, stratus, nimbus. तो देखो, सबसे ऊपर होते हैं हमारे सिरस. सिरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड्स 8000 से 12000 मीटर तक की हाइट. वो पतले होते हैं, दे आर थिन एंड डिटैच्ड, एक दूसरे से छटे हुए होते हैं. क्लाउड्स हैविंग अ फेदरी अपीयरेंस, जो सबसे ऊपर आपको दिखेंगे एकदम फेदर यानी कि पंख नुमा रुई नुमा शेप में वो दिखेंगे आपको. सिरस होंगे सबसे ऊपर एंड दे आर ऑलवेज व्हाइट इन कलर में, हमेशा व्हाइट होंगे. ठीक. दूसरे नंबर का जो ऊपर से नीचे सेकंड नंबर पे आएगा वो है क्यूमुलस. क्यूमुलस क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन, जो रुई के समान दिखेंगे आपको, वो होंगे आपके क्यूमुलस. दे आर जनरली फॉर्म्ड एट अ हाइट ऑफ 4000 से 7000 मीटर एंड दे एग्जिस्ट इन पैचेस, धब्बे टाइप के होंगे, एंड कैन बी सीन स्कैटर्ड हियर एंड देयर, फट मतलब इधर उधर चिथड़े बिखड़े पड़े होंगे. एंड दे हैव अ फ्लैट बेस, नीचे से तो एकदम फ्लैट होंगे, ऊपर से ऐसे ऐसे होंगे, कुछ नहीं पता कैसे होंगे, नीचे से एकदम फ्लैट दिखेंगे. क्यूमुलस. फिर हमारे तीसरे बात है स्ट्रेटस. तो एज देयर नेम इम्प्लाइज, स्ट्रेटस मतलब ऐसा उनका नाम बता रहा है, these are layered clouds covering large portions of the sky. These clouds are generally formed either due to loss of heat or the mixing of air masses with different temperatures. ठीक. ये क्लाउड्स क्या होते हैं? जनरली फॉर्म्ड ईदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, या तो इनकी हीट लॉस हो जाए, या फिर मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर्स के साथ. लास्ट जो सबसे नीचे मिलते हैं निम्बस. तो निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक या फिर डार्क ग्रे होते हैं, and they form at middle levels or very near to the surface के पास होते हैं of the earth, and these are extremely dense and opaque to the rays of sun. इन्हीं से हमारी सन की रेज पास नहीं होती, क्योंकि ये क्या होते हैं? बहुत घने होते हैं. and the clouds are so low that they seem to touch the ground. आपने देखा होगा कई बार जब आप ओपन ग्राउंड में, मतलब गांव वगैरह में देखे होंगे आपने ना, कि जो क्लाउड्स होते हैं एक बार, मतलब ऐसा लगता है अगर आप खेत वगैरह में खड़े होंगे दूर तक अगर आपको दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं ग्राउंड टच कर रहे हैं. ठीक है, तो वो हमारे होते हैं निम्बस. ठीक है. द ग्राउंड, सो निम्बस क्लाउड्स आर शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर, इनमें बहुत ज्यादा वेपर होता है. ये देखो, ये कैसे है आपके? निम्बस ही तो है ये. ओके. A combination of these four basic types of can give rise to the following type of clouds: high clouds, cirrus, cirrostratus, cirrocumulus, middle clouds, altostratus and altocumulus. लो क्लाउड्स में कौन कौन से आएंगे? स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रेटस. अब देखो नाम से ही है यार, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ. सबसे नीचे था निम्बस, फिर था स्ट्रेटस, फिर था क्यूमुलस, और फिर था हमारा सिरस सबसे ऊपर वाला. ठीक. ये था फेदरी शेप, डिटैच्ड, स्ट्रेटस वाले और निम्बस वाले सबसे नीचे. ओके. ये बोल रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फोर. तो सबसे पहले बोल रहा है जो हाई क्लाउड्स है उनको बोलते हैं हम सिरस. तो देखो नाम से ये पहले तो हाई क्लाउड्स में सिरस है, वो तो है ही ऊपर. ठीक. इसके अलावा क्या बोला इन्होंने? हाँ, सीरो स्ट्रेटस. अब हाई क्लाउड्स में एक तो सिरस आ गया है, इसके अलावा आ जाएगा सीरो
और साथ में ये वाले भाई साहब भी मिल जाएंगे स्ट्रेटस। तो सीरो स्टेटस हो गए। फिर बोला इन्होंने सीरो क्यूमुलस। ओके, सीरो क्यूमुलस, सीरो प्लस क्यूमुलस। ओके, अभी मैं बताता हूँ ना, एक मिनट देना। आपके मिडिल क्लाउड्स में है ऑल्टो स्टेटस। जो मिडिल क्लाउड्स हैं उसमें है ऑल्टो स्टेटस। ठीक, इसके अलावा क्या है? ऑल्टो क्यूमुलस है। ओके, लो क्लाउड्स। अभी देखो क्या बनेगा इससे। लो क्लाउड्स का नाम क्या क्या है? स्ट्रेटो क्यूमुलस, और क्या हमारा स्ट्रेटो, सॉरी निम्बो स्टेटस। ओके, वेरी नाइस। देखो हाई क्लाउड्स में क्या है, सबसे पहले सिरस है। सबसे ऊपर हाई वाले में है सिरस, तो भैया सिरस नाम दे दिया। उसमें इन्होंने ऊपर के दो जोड़ दिए, एक है स्टेटस और एक है सिरस क्यूमुलस। ठीक है, सिरस ही है, सिरस में स्टेटस जोड़ दिया, सिरस प्लस क्यूमुलस, सिरस क्यूमुलस और सिरस प्लस स्टेटस और सिरस। एक सिरस, सिरस क्यूमुलस दो और सिरस स्टेटस थ्री। तो टोटल तीन हाई क्लाउड्स हो गए। ठीक, मिडिल क्लास में बोल रहे हैं ऑल्टो स्टेटस, तो मिडिल ध्यान रखना, ऑल्टो जहां पे भी आ जाए वो मिडिल क्लाउड से बिलोंग करेगा बस। अब मिडिल के ये दो हैं, ऑल्टो क्यूमुलस और ऑल्टो स्टेटस। ठीक, लो क्लाउड्स की अगर बात करें तो देखो लो में आपके क्या आ जाते हैं? निम्बो तो है, निम्बो वाले हैं, लेकिन लो में भी जो हाई वाला है वो है स्टेटस। ठीक है, तो स्टेटो में आप मिला लो ऊपर वाला क्यूमुलस और निम्बो को मिला दो स्टेटस, यानी कि नीचे वाले दो और ये दो, ये दोनों मिल जाएंगे आपके। निम्बो में दोनों मिला दो, निम्बो में स्टेटस मिलाओ क्यूमुलस मिलाओ, तो बन जाएंगे लो क्लाउड्स। बाकी सिरस वाला तो आपको पता लग, मतलब हाई क्लाउड्स पता लग जाएंगे, और मिडल वाले इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। एक दो बार अगर आप ऐसे बनाओगे फ्लो चार्ट आपको समझ आ जाएगा। गॉट इट? चलो, एंड क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस, ये बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत बारिश कराते हैं ये। ओके, तो अब बात करेंगे हम, ये क्या लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेशन। ओके, the process of continuous condensation अगर हो रहा है in free air helps the condensed particles to grow in size, and when the resistance of the air fails to hold them against the force of gravity, से अगर hold नहीं कर पा रहा है, they fall on the earth surface, and after the condensation of water vapor the release of moisture is known as precipitation। जो moisture को release करते हैं उसको बोलते हैं precipitation, and this may take place in liquid या फिर solid form में हो सकता है, जो भी है। the precipitation in the form of water is called, अगर पानी के रूप में हो जाए तो rainfall, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो गया तो वो हो जाएगा स्नोफॉल। ठीक, सो मॉइस्चर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। ओके, these crystals फॉर्म करते हैं फ्लेक्स ऑफ स्नो। बिसाइड्स रेन एंड स्नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है? स्लीट, हेल, एंड दो the latter are limited in occurrence and are sporadic in both time and space। तो स्लीट क्या है भैया? स्लीट एक फ्रोजन रेन ड्रॉप है, जो रेन ड्रॉप है जो गिरी है वो बन गई है, मतलब फ्रीज हो गई है। एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर अगर आपका स्नो वाटर पिघल के दोबारा से वो ठंडा हो गया उसको बोलेंगे हम स्लीट। एंड व्हेन अ लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर above freezing point overlies a sub-freezing layer near the ground, so precipitation takes place in the form of sleet, raindrops which leave the warmer air and counter the colder air below, and as a result, they solidify and reach the ground as small pellets of ice not bigger than the raindrops from which they are formed. And sometimes drops of rain after being released by the clouds become solidified into small rounded solid pieces, इन्हीं को बोलते हैं हम ओले of ice, and which are reaches the surface of the earth are called hailstones। ठीक, and these are formed by the rainwater passing through the colder layers। अगर ऊपर से बारिश हो रही है, कोई लेयर नीचे ठंडी मिल गई, तो जो पानी गिर रहा है वो यहाँ पे ठंडा होकर किस में गिरेगा? टुकड़ा बन जाएगा। ठीक है, रेन ड्रॉप किसका? हेल स्टॉर्म, यानी कि हमारा ओला, ओले ओले।
So these are formed by the rainwater passing through the colder layers. Hailstones have a several concentric layers of ice one over another. Okay. Rainfall की बात करते हैं. So on the basis of origin, rainfall may be classified into three main types: convectional, orographic और relief, या फिर cyclonic या फिर frontal. तो भैया सबसे पहली रेनफॉल हमारी कन्वेक्शनल रेन. द एयर ऑन बीइंग हीटेड, जब हमारी हवा गर्म होती है, बिकम्स हल्की हो जाती है एंड राइजेस अप इन कन्वेक्शन करंट. अब जब ये उठती है, इट एक्सपेंड्स एंड लूजेस हीट एंड कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक प्लेस एंड क्यूमुलस clouds are formed with thunder and lightning. Heavy rainfall take place, but this does not last long, and such rain is common in the summer या फिर hotter part of the day. It is very common in the equatorial regions and interior parts of the continents, particularly in the northern hemisphere. Okay. Orographic rain क्या होती है? When the saturated air mass, saturated मतलब जिसमें हमका air mass और ज़्यादा नहीं आ सकता, क्या? Moisture comes across a mountain, it is forced to ascend. जब ये ऊपर चढ़ता है, टेम्परेचर कम होगा, and it rises, it expands, the temperature falls and the moisture is condensed. And the chief characteristic of this short of rain is that the windward जो slopes हैं receive greater rainfall. And अच्छा, orographic rain is the only rain जिस जो windward slope को देती है maximum rainfall. And after giving rain on the windward side, when these winds reach the other slope जिसको बोलते हैं leeward side, फिर वहां पे ये नीचे उतरती हैं and their temperature rises. जब ये नीचे उतरेंगे उनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. आपको पता है ना, हाइट पे जाने पे टेम्परेचर घटता है और नीचे जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है. तो जब ये डिसेंड कर देंगी, नीचे उतरेंगी दूसरी लीवर्ड साइड में, उनका टेम्परेचर राइज होगा एंड देन देयर कैपेसिटी टू टेक इन मॉइस्चर इंक्रीजेस. तो वो उस दूसरी साइड का मॉइस्चर भी पकड़ लेंगी एंड हेंस these leeward slopes remain rainless and dry रहती हैं. So the area situated on the leeward side which gets less rainfall is known as the rain shadow area. It is also known as the relief rain. फिर हमारी लास्ट रेन है साइक्लोनिक रेन. यू मे हैव ऑलरेडी रीड अबाउट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड साइक्लोनिक रेन इन दिस, बता चुका हूँ. ओके. वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये पढ़ लो, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है. तो डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस रिसीव करता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर एंड दैट टू इन डिफरेंट सीजन्स. तो इन जनरल एज वी प्रोसीड फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल से, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, सो रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग स्टीडली. ठीक. The coastal areas of the world receive greater amounts of rainfall than the interior of the हमारे जो भी कॉन्टिनेंट्स. ठीक है. The rainfall is more over the oceans में ज़्यादा होती है than on the landmass of the world because of being great sources of water between the latitude 35 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड में ऑफ द इक्वेटर. So the rain is heavier on the eastern coast and goes on decreasing towards the west. But between 45 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में क्या होता है, ऑफ इक्वेटर ड्यू टू वेस्टर्लीज. अब इनका डायरेक्शन बदल जाएगा. द रेनफॉल फर्स्ट रिसीव्ड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स of the continents and it goes on decreasing towards the east. Okay. So the rainfall is first received on the western margins of the continent when it goes on decreasing toward the east. Wherever mountains run parallel to the coast, the rain is greater on the coastal plain on the windward side and it decreases towards the leeward side. So on the basis of the total amount of annual precipitation, major precipitation regions of the world are identified as follows. तो देखो, इक्वेटोरियल बेल्ट, द विंडवर्ड स्लोप, इक्वेटोरियल बेल्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है. सेम विंडवर्ड स्लोप्स में ऑफ द माउंटेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन द कूल टेम्परेचर जोन एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ द मानसून लैंड रिसीव हैवी रेनफॉल ऑफ द ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम. इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज रिसीव मॉडरेट रेनफॉल. ठीक, 100 से 200 सेंटीमीटर होती है. जो हमारे कोस्टल एरिया जो सबसे ज्यादा करते हैं, कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रिसीव मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. और जो हमारे सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल लैंड एंड द ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट है हमारे टेम्परेट लैंड के, रिसीव करते हैं रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर पर साल. तो एरिया लाइंग इन द रेन शेडो जोन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के अंदर में जो है एंड हाई लैटिट्यूड रिसीव करता है वेरी लो रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर. ठीक है. तो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल प्रोवाइड करता है एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू जज इट्स इफेक्टिवनेस and in some regions rainfall is distributed evenly throughout the year such as in the equatorial belt and in the western part of the cool temperate regions. सभी जगह बटी हुई है. तो ये तो वही था. Which one of the uh, following is the most important constituent of the atmosphere for human beings?
मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे ख्याल से यही है, ऑक्सीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए? तो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू वेपर? लिक्विड पेपर में बदल रहा है, यानी कि लिक्विड जो है बाष्प हो रहा है, तो संघनन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन नहीं, यस कंडन, संघनित हो रहा है ना। ओके, द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, सैचुरेटेड एयर यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई? सबसे नीचे है निम्बस, फिर स्ट्रेटस, फिर सिरस, सॉरी, फिर क्यूमुलस है, और लास्ट हमारा सिरस। तो चौथा नंबर है हमारा सिरस, यानी कि सबसे ऊपर सिरस है। ठीक, सबसे ऊपर हमारा सिरस। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप यू एंजॉयड दिस। कुछ मजा आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो मजे करने थोड़ी ना आया, पढ़ाई करने आया हो। डाउट हो तो जस्ट टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से पढ़ो, अभी टाइम है, रिवाइज करो, डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ एंड प्रैक्टिस सेट। बच्चों आप कुछ भी फॉलो करो, चाहे तो आप टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो, या फिर इफ यू वांट तो मतलब पीवाईक्यूज ही लगा लो, मतलब जो भी करो आप, बस प्रैक्टिस सेट डेली लगाओ। ठीक, आप उसको हैबिट में डाल लो टिल योर एग्जाम डेट से एक दिन पहले तक। एग्जाम दिन पे मत देना आप टेस्ट। ओ ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना, बाय बाय, गुड नाइट।